لاہور میں سردی کی شدت کا جو احساس ہے وہ ملتا ہے، جبکہ اگر آج کے درجہ حرارت کی بات کرتا چلوں تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت 21 ڈگری جبکہ زیادہ سے زیادہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ موجودہ درجہ حرارت جو ہے وہ بھی 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 67% تک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ وہیں پر لاہور میں اس وقت 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں، جو سورج نکلنے سے قبل لاہوریوں کو جو ہے سردی کی شدت کا احساس کروا رہی تھی، لیکن جیسے ہی سورج نکلا تو سورج نے اپنی کرنیں زمین پر بکھیریں اور ساتھ ہی جو ہے وہ لاہوری اب جو ہے وہ سورج کے باعث گرمی کا احساس جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے لاہور میں پچھلے تقریباً 2 سے 3 ہفتوں سے جو موسم ہے وہ لمحہ لمحہ تبدیل ہو رہا ہے اور آئے روز کبھی سردی ہوتی ہے تو کبھی گرمی، تو کہیں ہوائیں چلتی ہیں تو کبھی بارش جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ لاہور یہ اس لاہور میں جو ہے وہ مختلف قسم کے موسم جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، کبھی کوئی سردی پسند کر رہا ہے تو کوئی اسی کے ساتھ ساتھ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے شوقین افراد جو ہے وہ کھلکھلا اٹھتے ہیں۔ تو لاہور کا جو موسم ہے اس وقت انپریڈکٹیبل جو ہے وہ ہوا ہے۔ جی جی بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اب آپ کو بتائیں کہ شدید بڑھتی مہنگائی کے باعث عوام پریشان۔ مرغی کے گوشت کی فی کلو قیمت 591 روپے پر برقرار۔ فارمی انڈے 2 روپے مہنگے، فی درجن قیمت 228 روپے ہو گئی ہے۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 6720 روپے میں دستیاب۔ مزید تفصیلات جانیں گے عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری نقطہ میں جاری کیے گئے اس میں برائلر کی قیمتیں بدستور بلند سطح پر برقرار ہیں اور سرکاری ریٹ اس میں برائلر گوشت کی قیمت 591 روپے فی کلو کی سطح پر برقرار رکھی گئی ہے، تاہم مارکیٹ میں صافی برائلر گوشت جو ہے 650 سے 660 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح زندہ برائلر کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو فارم گیٹ ریٹ زندہ برائلر کا 380 روپے فی کلو مقرر کیا گیا، ہول سیل زندہ برائلر 394 اور پرچون زندہ برائلر کی قیمت 408 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ انڈوں کی قیمتوں میں گزشتہ روز بھی 2 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا، آج مزید 2 روپے بڑھا کر 228 روپے فی درجن قیمت مقرر کی گئی ہے۔ ہول سیل مارکیٹ کے لیے انڈوں کی پیٹی سرکاری ریٹ میں 6720 روپے کی مقرر کی گئی ہے۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ برائلر کی قیمتیں کنٹرول نہیں کی جا رہی اور اب بھی برائلر جو ہے لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب بھر میں تعلیمی ادارے ہفتے میں 4 دن کھلیں گے، اب جمعے کے روز بھی چھٹی ہوگی۔ محکمہ اسکول اور محکمہ ہائر ایجوکیشن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ اسکولوں میں نئے تعلیمی سال کا باقاعدہ آغاز بھی ہو گیا۔ طلبہ اور اساتذہ نے تعلیمی سرگرمیاں بحال ہونے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ تعلیمی اداروں کی سرگرمیوں میں تبدیلی، اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز ہفتے میں 4 دن کھلیں گے۔ محکمہ اسکول اور ہائر ایجوکیشن نے ہفتے میں 4 دن حاضری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ فیصلے کا اطلاق تمام سرکاری اور نجی اسکول، کالج اور یونیورسٹیز پر ہوگا۔ اب بھر میں 3 ہفتوں کی تعطیلات کے بعد سرکاری اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں بحال۔ اسکولوں کے اوقات کار صبح 8 سے 1:30 بجے تک ہوں گے۔ ڈبل شفٹ اسکولوں میں مارننگ شفٹ کو 12:30 بجے چھٹی ہوا کرے گی۔ سیکنڈ شفٹ میں اسکول دوپہر 1 بجے سے 5:30 بجے تک لگا کریں گے۔ نئے تعلیمی سال کے آغاز پر اسکولوں میں رونقیں لوٹ آئیں۔ طلبہ کا کہنا ہے چھٹیوں میں خوب تفریح کی، تاہم اب وہ مکمل توجہ کے ساتھ پڑھائی کر کے اچھے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چھٹیوں میں بہت ہم نے انجوائے کیا تو ہمیں خوشی آیا کہ ہم 9 میں آئے ہیں، تو سر پڑھا رہے ہیں بھی، انشاءاللہ امید ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے سر کی وجہ سے۔ ابھی ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس ہے، ہم 9 کلاس میں ہیں، اس لیے ہم اپنی تیاری میں بھرپور تیاری کریں تاکہ ہم اپنے بورڈ کے پیپر آسانی سے کر سکیں۔ اساتذہ کے مطابق نئے سیشن کے آغاز کے ساتھ ہی تدریس کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ طلبہ کو باقاعدہ شیڈیول کے مطابق پڑھایا جا رہا ہے۔ بچے بھی خوش ہیں، اساتذہ بھی خوش ہیں اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ سال بچوں کے لیے اور اسکول ایجوکیشن کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ جب بھی اسکولوں کے اندر چھٹیاں ہوتی ہیں یا اسکول بند ہوتے ہیں اور بغیر شیڈول کے بند ہوتے ہیں تو اس کا بچوں کا تعلیمی نقصان ہوتا ہے، تو حکومت وقت سے میری گزارش ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں تعلیمی سرگرمیاں جاری رہنی چاہیے۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے بھی اسکولوں میں حاضری اور تدریسی عمل کو یقینی بنانے کے لیے مانیٹرنگ سخت کر دی گئی ہے۔ کیمرامین محمد شہباز کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ ٹیک ویلی پاکستان کا محکمہ ہائر ایجوکیشن کے ساتھ بڑا معاہدہ، طلبہ کو 1 لاکھ گوگل کیریئر سرٹیفکیٹ اسکالرشپس مفت دینے کا اعلان۔ پروگرام کے تحت نجی اور سرکاری جامعات کے طلبہ اور اساتذہ بلا امتیاز مفت کورسز کر سکیں گے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔
महकमा हायर एजुकेशन और टेक वैली पाकिस्तान के दरमियान तारीखी मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत तलबा के लिए 1 लाख गूगल करियर सर्टिफिकेट्स स्कॉलरशिप्स फराहम किए जाएंगे। प्रोग्राम में निजी और सरकारी जामियात के तलबा और असातिज़ा बिला इम्तियाज मुफ्त कोर्सेज कर सकेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं कि तलबा को IT, डाटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी और AI जैसे शोबों में तरबियत दी जाएगी। रवा साल 14 स्पेशलाइजेशंस और 82 कोर्सेज मुतारिफ करवाए गए हैं। कि जिस साल हम आए तो 5,000 कोर्सेज थे, अगले साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने 25,000 किए और अब 1 लाख कोर्सेज, जिसके अंदर आप AI एसेंशियल से शुरू हो जाएं, डेटा मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, एवरीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू योर लाइफ। और साथ ही साथ ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, इसके अंदर फैकल्टी के लिए, टीचर्स की AI लेसन प्लानिंग के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, और उसके साथ साथ अगर आपने लेट से मैनेजमेंट करनी है और आप मैनेजमेंट केडर से हैं, कैसे वो टूल्स आपको आपकी मैनेजमेंट के अंदर डेली लाइफ के अंदर हेल्प कर सकते हैं। CEO टेक वैली पाकिस्तान उमर फारूक का कहना था कि ये इकदाम न सिर्फ नौजवानों को जदीद डिजिटल स्किल्स फराहम करेगा बल्कि उन्हें आर्मी सतह पर मुकाबला करने के काबिल भी बनाएगा। इस वक्त पूरी दुनिया बात कर रही है जेमिनाई की, AI की, लेकिन हाउ टू यूज़ इट इन एवरीडे लाइफ। वी वांटेड टू स्टार्ट कि हम हायर एजुकेशन में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में हर बंदे को अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप को अपस्किल कर सके। हर बंदे के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि इन टूल्स को यूज़ करके वो अपनी इकनॉमिक कंडीशन, अपनी सैलरी, अपनी इकनॉमिक इनकम बेहतर कर सके। हुकाम का कहना है कि इस प्रोग्राम से रोजगार के मौक़ों में इजाफा होगा और पंजाब को डिजिटल तरक्की की राह पर गामजन करने में मदद मिलेगी। पंजाब के सरकारी स्कूलों में तलबा के लिए मुफ्त दरसी किताबों की तकसीम का आगाज़ हो गया है। सूबे भर में लाखों तलबा मुस्तफ़ीद होंगे। पंजाब में मजमूई तौर पर 3 करोड़ मुफ्त किताबें तकसीम की जाएंगी। ये रिपोर्ट देखें। पंजाब के सरकारी स्कूलों में नए तालीमी साल के आगाज पर मुफ्त दरसी किताबों की तकसीम शुरू कर दी गई। मुख्तलिफ अजला और तहसीलों के वेयर हाउसेज में किताबें पहुंचा दी गईं। महकमा तालीम के मुताबिक रवा साल पंजाब भर में 3 करोड़ से जायद दरसी किताबें तलबा को फराहम की जाएंगी। इंचार्ज वेयर हाउस काशिफ शहजाद का कहना है, तमाम वेयर हाउसेज में किताबों की बर वक्त फराहमी को यकीनी बनाया गया है। हमारी कोशिश है कि हर तालिब इल्म को नए तालीमी साल के आगाज पर मुकम्मल सेट दस्तयाब हो। आज से नए तालीमी साल का आगाज़ हो गया है और ये किताबों की तकसीम भी हमने शुरू कर दी है और इंशाल्लाह 1-2 रोज़ में मुकम्मल तौर पर जो तहसील सिटी है उसको किताबें डिलीवर हो जाएंगी। हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक जो है वो क्लास 3 तक 100% किताबें हैं, उसके बाद 4-5 में 80% किताबें हैं और फिर जो है 6, 7, 8 और 9th की किताबें जो हैं वो 50% हैं। 10th की किताबें भी मिनिस्टर साहब की मेहरबानी से वो 100% हो गई हैं। हुकाम का कहना है कि किताबों की मुनसिफाना तकसीम के लिए मॉनिटरिंग का निज़ाम भी सख्त किया गया है ताकि शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। PPSC ने मुख्तलिफ महकमों की असामियों के तहरीरी और हतमी नताइज का ऐलान कर दिया। रिंग रोड अथॉरिटी में ऑफिस असिस्टेंट की 12 असामी पर 27 उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट में कामयाब करार पाए। तर्जुमान PPSC के मुताबिक कामयाब उम्मीदवारों में नादिया परवीन, फौजिया यूनुस, अनिका अकरम चौधरी, सुलेमान हसन, हबीबुल्लाह, तौकीर मुदस्सिर शामिल हैं। पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर मुल्तान रीजन की 30 असामियों पर 30 उम्मीदवार हतमी तौर पर कामयाब करार पाए। हमाद अली, फारूक, नवाज फारूकी, हारिस मुख्तियार, शहबाज सरवर, मोहम्मद तलहा, इमरान, अलीसा फातिमा कैसरानी शामिल हैं। सेक्रेटरी PPSC अफजाल अहमद ने कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और सब्जियों के दाम बेलगाम हो गए, आवाम शदीद परेशानी का शिकार। मार्केट में मटर 160, शिमला मिर्च 120, मेथी 80 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। सेब 550, पपीता 320, अमरूद 260, जबकि खरबूजा 180 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। आपको बता रहे हैं कि सूबाई दारुल हुकूमत में फल और सब्जियों के दाम बेलगाम हो गए हैं और आवाम शदीद परेशानी का शिकार है। मार्केट में मटर 160, शिमला मिर्च 120, मेथी 80 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। सेब 550, पपीता 320, अमरूद 280, जबकि खरबूजा 180 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। सूबाई दारुल हुकूमत में फल और सब्जियों के दाम बेलगाम हो गए हैं और आवाम शदीद परेशानी का शिकार हो गई है। मार्केट में मटर 160, शिमला मिर्च 120, मेथी 80 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी है। और नाज़रीन, LPG का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। शहरी नई परेशानी में मुब्तला। गैस 78 रुपए फी किलो महंगी होने के बावजूद कहीं भी सरकारी निरखों पर दस्तयाब नहीं। शहर की दुकानों पर LPG 450 से लेकर 470 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी है। रिपोर्ट देखें।
एलपीजी माफिया कंट्रोल से बाहर, दुकानदार भी लूट मार की गंगा में हाथ धोने लगे। ओगरा ने एलपीजी का रेट 78 फी किलो रुपए बढ़ाया तो माफिया ने कीमतों में कई गुना ज्यादा इजाफा कर दिया। शहर भर में कहीं भी ओगरा रेट 304 रुपए फी किलो पर एलपीजी दस्तयाब नहीं। दुकानों पर एलपीजी धड़ल्ले से 450 से लेकर 470 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया। हुकूमत एलपीजी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करे। एलपीजी की कीमतों में इजाफा, ये तो गरीब आदमी के बहुत ही बोझ पड़ गया है। आगे अखराजात बहुत हैं, तो ये एलपीजी खाली गाड़ियों में नहीं डलती, ये घरेलू में, घरों में भी यानी कि इस्तेमाल होती है। गरीब आदमी है उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। वो तो 450 रुपये खरीद नहीं सकता गरीब। जो आदमी 800 हज़ार रुपये या 1200 रुपये या 1500 रुपये दिहाड़ी कमाता है, वो क्या पूरा करेगा? घी की कितनी कीमत है, हर चीज़ इतनी बढ़ गई है, जो माफिया वालों को पूछने वाला कोई नहीं है। एलपीजी की कीमतों में मसनूई इजाफे से छोटे दुकानदार भी परेशान हैं। वो कहते हैं कि कीमतें बढ़ने पर हमें नाजायज तंग किया जाता है। एलपीजी के बड़े प्लांट्स मालिकान और डिस्ट्रीब्यूटर्स पर हाथ। सरकारी अफसरान की अप्रैल में 2 रोज की बुनियादी तनख्वाह काटने की तैयारियां। तनख्वाह में कटौती का मुरासला एजी ऑफिस और दीगर महकमों को इरसाल कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखें। पंजाब हुकूमत की किफ़ायत शारी पॉलिसी के तहत सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में कटौती का फैसला ग्रेड 17 और जायद के अफसरान की अप्रैल 2026 की तनख्वाहों से 2 रोज़ के पैसे काटे जाएंगे। महकमा खजाना ने तनख्वाहों में कटौती का मरासला एजी ऑफिस और दीगर महकमों को अरसाल कर दिया। कटौती खुद मुख्तार, नीम खुद मुख्तार अदारों, कंपनीज और लोकल गवर्नमेंट्स के अफसरान पर लागू होगी। तनख्वाहों में कटौती की रकम वज़ीर आज़म के ऑस्टेरिटी फंड में तनख्वाहों में कटौती के हवाले से पंजाब भर के बल्दियाती अदारों को भी हिदायत जारी करती हैं। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुजतबा शुजाउर रहमान ने कहा कि हुकूमत किफ़ायत शारी पॉलिसी पर भरपूर अंदाज में अमल पैरा है। इस सिलसिले में खसूसी कमेटी भी कायम कर दी। तेल के सरकारी इस्तेमाल में 50% तक कमी की गई है। निजी शोबा भी तवानाई बचत में ताउन करे। जाहिद आबिद की ये रिपोर्ट देखें। FPCCI लाहौर में हुकूमती कफ़ायत शारी और मुआशी पॉलिसी पर अहम नशिस्त का एहतमाम। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुजतबा शुजाउर रहमान ने कहा कि गैर तरक्याती अखराजात में 25% कटौती नाफिज की गई। बैरून मुल्क सरकारी दौरों पर पाबंदी आयद कर दी गई। दफातर में बिजली और गैस की बचत के इकदाम जारी हैं। कफ़ायत शारी मुहिम में अवाम और निजी शोबे को भी हुकूमत का साथ देना होगा। नॉन डेवलपमेंट साइड पे फौरी तौर पर जो है वो कट लगा दिया नॉन डेवलपमेंट के जो बजट थे उनके, और अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो आगे हम अपने जो हमारा आखिरी क्वार्टर है इसमें हम अपने डेवलपमेंट साइड के बजट को भी देखेंगे कि अगर उस पर भी कट लगाने की ज़रूरत पड़ी तो उस पर भी लगाया जाए। मगर नॉन डेवलपमेंट साइड पे तकरीबन 25% हमने जो है कट लगा दिया है। सूबाई वज़ीर ख़जाना ने आलमी सूरत हाल का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में सालची का किरदार अदा कर रहा है। उम्मीद है अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस मकसद में कामयाबी अता करेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब मियाँ शहबाज शरीफ साहब और उनकी सारी टीम, इसाक डार साहब एज अ फॉरेन मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और सारे कोशिश कर रहे हैं कि ये अमेरिका और जो है ईरान की जो जंग है उसमें एक सालिस का किरदार अदा किया जाए। तो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर सारी दुनिया की नज़रें हैं, तो पाकिस्तान जो है वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला यहाँ पे भी पाकिस्तान को इज्जत देगा। FPCCI के नायब सदर ज़की एजाज ने कहा कि आलमी सतह पर ईंधन के मसाइल दरपेश हैं। निजी शोबा हुकूमत के साथ मिलकर मुश्तरका हिकमत अमली के तहत काम करने का ख्वाह है ताकि मुल्की मईशत को मजीद मुस्तहकम किया जा सके। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं मुल्क इस वक्त किसी किस्म की एहतजाजी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंगबंदी में पाकिस्तान सालिसी के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। नौजवान नस्ल बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने में अपना किरदार अदा करे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मान खैरा, जहां आरा भट्टो और सूबाई वज़ीर मंशा भट्ट ने मुलाकात की। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा ज़ाती मफाद से बालातर होकर मुल्की मफाद को तरजीह दी। पीपल्स पार्टी मुल्की तरक्की के लिए मौजूदा हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन करेगी। गवर्नर सलीम हैदर ने मज़ीद कहा कि बिलावल भुट्टो नौजवानों के लीडर हैं। किसी भी सियासी जमात के पास सिवाय पीपल्स पार्टी के नौजवान क़यादत नहीं है। उन्होंने पार्टी की तंजीम 9 के बाद मुंतखब होने वाले अहदेदारान को मुबारकबाद दी है। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में इंतजामी मामलात अबतर। बिजली बंद होने पर एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में मोबाइल फ़ोन की रोशनी में सर्जरी करने का इंकशाफ हुआ। वीडियो मंजर आम पर आ गई। अस्पताल के बैकअप जनरेटर भी नहीं चलाए जा सके। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मोहम्मद बिलाल की ये रिपोर्ट देखें।
ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता शाम सर्विसेज अस्पताल के इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में अचानक बिजली बंद हो गई। आधे घंटे तक ऑपरेशन थिएटर अंधेरे में डूबा रहा। इस दौरान डॉक्टर्स ने मोबाइल फोन की रोशनी में सर्जरी जारी रखी, जिसकी वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। अस्पताल इंतजामिया इमरजेंसी का बैकअप जनरेटर बर वक्त चलाने में नाकाम रही। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सर्विसेज अस्पताल के मामले का नोटिस लेते हुए महकमा सेहत से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। MS सर्विसेज अस्पताल के मुताबिक अब अस्पताल में बिजली मामूल के मुताबिक बहाल और मुकम्मल बैकअप सिस्टम मौजूद है। दूसरी तरफ सर्विसेज अस्पताल में बिजली बंदिश की वीडियो से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है कि तूफानी बारिश के दौरान बिजली बंद जरूर हुई, लेकिन चंद सेकंड्स में जनरेटर खुदकार तौर पर फाल हो गए। बिजली बंदिश के दौरान मरीजों के इलाज में कोई खलल आया, न ही कोई नाखुशगवार वाकया रिपोर्ट हुआ। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि सर्विसेज अस्पताल की सर्जिकल इमरजेंसी में दर्जनों जबकि मेडिकल इमरजेंसी में सैकड़ों मरीजों का इलाज किया गया। इलाज में गफलत या बद इंतजामी का कोई सबूत नहीं मिला। मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़।